हेलो एवरीवन. सो लेट्स नॉट ब्रेक द चेन एंड मेक श्योर कि आप लोगों को रोज 2 DILR के सेट्स मिलते रहें. सो फॉर ऑल द पीपल हु आर वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हु गॉट इट शेयर्ड बाय समवन, सो उनके लिए है कि कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग रोज करते हैं. सो दीज आर द थिंग्स विच आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज. So every day at 7 a.m. you get an article to read. This article is especially shortlisted by our mentors and have high probability of coming in CAT exam. So जो RCs CAT में आती हैं उनसे काफ़ी related RCs के article हम लोग यहाँ पे post करते हैं. Then you also get PDFs of newspapers. At 10 a.m. you get an RC set. तो इस RC सेट का वीडियो एक्सप्लेनेशन YouTube पे अपलोड होता है एंड यू कैन गेट PDF ऑफ दिस RC सेट ऑन आवर फेसबुक ग्रुप. अगेन एट 12 noon you get a DILR set. Similarly you get an explanation video on YouTube and you get the PDF on Facebook group. At 2 p.m. you again get a DILR set. At 4 p.m. you get an RC set. At 6 p.m. daily we do vocabulary quiz on our Telegram channel. So make sure that you are part of these groups. फेसबुक ग्रुप, यू हैव सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस ऑन दैट बेल आइकन सो दैट एनी टाइम अ न्यू वीडियो इज अपलोडेड और पब्लिश्ड यू गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ दैट. एट 8:30 p.m. वी डू फेसबुक और इंस्टा क्विज एंड दीज क्विज वेरी फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स लाइक जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, science, technology, computer science and all these things. So this is something which we are giving to students on a daily basis. Along with that, we also conduct from 8 to 10 live classes. These classes are only for our enrolled students. So if you like our way of teaching, if you like our methodology, you can enroll in our paid batches and you can attend these live classes on a daily basis. So let's not delay further and let's start with this set. So the set is 4 persons A, B, C and D were playing a game in which they were sitting around a circular table in 4 equally spaced chairs in the clockwise direction in the same order as mentioned above. So we can see that they are placed something like this. So we have A here, then we have B, then we have C and then we have D. So these are the 4 people. On the table there was a pile of 30 cards comprising cards of 3 different colors, blue, yellow and red. The first person to play picks up a card from the pile randomly. If he picks a blue card, he passes the card to the person sitting opposite him. If he picks a red card, he passes the card to the person sitting to his left. So blue card is passed opposite. Red card is passed to the left and the last one is yellow and that is passed to the right. Next what it says whenever a card is passed to another person, the person to whom the card is passed keeps the card with him and the turn passes to him. He then picks up a card from the pile and the game continues in the same manner. The game continues till all the cards in the pile are picked up and passed to the relevant person, at which point the game ends. So what happens actually, for example, between A and C, so they are connected opposite. So if A picks a blue card, he passes that card to C and C picks the card from a pile of cards. So let's say if this is a pile of cards, so C picks another card from this pile and if it is blue, that blue card is passed to A and A picks card from here. If that card is red, then it is passed to the left. So left is this direction. So this is left and this is right. So C passes it to the left if it is red. If it is yellow, C passes it to B. Similarly, all these guys do the passing of cards. Next it says the person who picked up the first card was A, while the person who received the last card to be passed was D.
The table provides partial information about these things. So let's create this table here. So we have A, B, C and D, and then we have blue, red and yellow cards. Perfect. So what all is given to us? Here it is 3, here it is 3, 4, 1, it is 2, 0 and 4, this is 2. Now they say that A is the first one to pick the card and D is the last one to receive the card. Now few things which we can analyze from here कि अगर A ने पहला कार्ड पिक किया है तो जब उसने कार्ड को यहाँ से उठाया होगा तो उसने किसी को पास कर दिया होगा. उसके बाद जब भी A के पास किसी ने भी पास करके दिया तो A ने उसको पास कर दिया. यानी कि अगर A को हम देखें सो A से आउट जितने कार्ड गए हैं और A के पास इन जितने कार्ड आए हैं, सो इसके बीच में एक जो रिलेशन है वो ये है कि आउट इज इक्वल टू इन प्लस 1. क्योंकि जब पहला कार्ड उसने उठाया तो उसने उसको किसी और को दे दिया. उसके बाद जब भी A के पास कोई कार्ड आएगा तो एक कोई कार्ड पाइल से पिक करेगा और दूसरे को पास करेगा, बिकॉज लास्ट कार्ड जो है वो D ने रिसीव किया. तो अब A के पास जब भी कोई इन होगा तो A उसको अपने पास रख लेगा, पाइल से दूसरा कार्ड उठाएगा, किसी को पास कर देगा, फिर इन फिर पास एंड सो ऑन इट विल वर्क. बट द फर्स्ट कार्ड दैट A पिक्ड फ्रॉम हियर, उस टाइम पे उसके पास कोई भी इन नहीं था, इसलिए इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो होगा कि A के लिए आउट इक्वल्स टू इन प्लस 1. सो A और ये जो है, ये जो ग्रिड है, ये क्या दिखा रही है? ये हमें इन दिखा रही है. सो फॉर A वी कैन से आउट, अगर यहां पे हम आउट लिख दें, सो आउट इज इक्वल टू इन प्लस 1. व्हाट अबाउट B? B ने ना तो पहला कार्ड उठाया है ना तो लास्ट कार्ड रिसीव किया है. इसका मतलब B के पास जब भी इन होगा तो B उसको आउट भी कर देगा. सो फॉर B इन इक्वल्स टू आउट. तो जितने इन हैं यानी कि जितने कार्ड B के पास हैं 4 + 3 7 + 1 8, उतना ही आउट होगा B से. सिमिलरली सेम थिंग विल हैपन फॉर C. तो C में 6 इन है तो 6 आउट होगा. नाउ फॉर D ने लास्ट कार्ड रिसीव किया है. तो अगर हम D की बात करें यहाँ पे, तो D ने लास्ट कार्ड रिसीव किया है और उसके लिए कोई भी आउट नहीं था, यानी कि पाइल खत्म हो चुका था. तो फॉर D जो रिलेशनशिप होगा वो होगा आउट इक्वल्स टू इन -1. सो फॉर D इट विल बी इन -1. नाउ यू कैन सी दैट आउट विल बी इक्वल टू इन, बिकॉज बाकी सारा कुछ ऐड करके टैली कर सकते हैं हम लोग. तो इसका सम 30 आना चाहिए. सिमिलरली इन सारे कॉलम्स का भी सम, रोज का भी सम अगर हम करें तो भी 30 आना चाहिए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस ग्रिड. तो अगर B के पास 3 ब्लू कार्ड हैं तो B को ब्लू कार्ड कौन देगा? B को ब्लू कार्ड D ही दे सकता है. इसका मतलब D को 3 कार्ड्स मिले होंगे क्योंकि उसने 3 कार्ड्स ब्लू के B को दिए हैं. सो अगर हम D के बारे में बात करें तो D को 3 कार्ड्स तो मिले ही मिले होंगे, बिकॉज वी कैन सी. अगर हम ब्लू कार्ड्स की बात करें तो D को 3 ब्लू कार्ड्स मिले होंगे जो उसने B को पास कर दिए. उसी तरीके से B का अगर हम रेड कार्ड देखें तो 4 रेड कार्ड हैं. B को रेड कार्ड कौन देगा? रेड कार्ड हम लोग किसको देते हैं? लेफ्ट में पास करते हैं. लेफ्ट इस डायरेक्शन में है, यानी कि A के पास अगर रेड कार्ड आएगा तो वो B को पास कर देगा. B के पास रेड कार्ड कितने हैं? 4. इसका मतलब A के पास 4 रेड कार्ड रहे होंगे. सिमिलरली B के पास एक येलो कार्ड है. येलो कार्ड कैसे मिलता है? राइट से पास होता है, यानी कि C ने इसको पास किया होगा. सो C ने एक येलो कार्ड पास किया होगा. तो B के पास जितने भी कार्ड हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. उसी तरीके से C को अगर हम देखें तो C के पास 2 ब्लू कार्ड हैं. ब्लू कार्ड किसने दिए होंगे? A ने दिए होंगे. सो यहाँ पे 2 और आ गया. C के पास 0 रेड कार्ड हैं. रेड कार्ड कैसे मिलता है? लेफ्ट से मिलता है, यानी कि B ने उसको कुछ भी नहीं दिया. फिर 4 येलो कार्ड हैं. येलो कार्ड कैसे मिलते हैं? राइट से मिलते हैं, यानी कि D ने C को 4 येलो कार्ड दिए. तो ये हो गया. अब हम लोग D के पास आते हैं. तो D के ब्लू कार्ड को X मान लेते हैं.
डी को ब्लू कार्ड कौन देगा? बी देगा. सो वी कैन पुट एक्स हियर. उसी तरीके से डी के पास 2 रेड कार्ड हैं. रेड कार्ड कैसे मिलेंगे? लेफ्ट से मिलेंगे, यानी कि सी देगा रेड कार्ड. तो सी को हम यहां पे 2 कर देते हैं. इसको हम लोग y मान लेते हैं. डी को येलो कार्ड कौन देगा? डी को येलो कार्ड राइट से मिलेगा, यानी कि ए देगा. तो ये यहां पे हम y कर लेते हैं. दिस थिंग इज ऑफ नो यूज नाउ, सो वी कैन रब दिस थिंग. सो डी भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया. इसको हम लोग ए कर लेते हैं. तो ए को ब्लू कार्ड कौन देगा? ए को ब्लू कार्ड सी देगा. तो यहां पे हमने कर दिया ए. इसको बी कर देते हैं. ए को रेड कार्ड कौन देगा? ए को रेड कार्ड लेफ्ट से मिलता है. लेफ्ट से मिलता है यानी कि डी देगा उसको. सो डी देगा, तो हम इस बी को डी पे ऐड कर देते हैं. सो दिस इज बी. नाउ द लास्ट वन इज 3. येलो कार्ड बी ए के पास 3 हैं. येलो कैसे मिलते हैं? राइट से मिलते हैं, यानी कि बी ने 3 कार्ड ए को दिए. सो दिस इज 3. अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट x प्लस 3 इक्वल्स टू 8. दैट गिव्स अस x इक्वल्स टू 5. ये दोनों चीजें क्लियर समझ में आ रही हैं? बिकॉज ये लेफ्ट इधर लिख देता हूं. ये जो हमने कॉलम बनाया, ये हमने इन का कॉलम बनाया. जो इन लोगों के पास आ रहा था वो ये लोग वापस कर रहे थे. यहां पे हम देखें अगर b के लिए, तो इन और आउट दोनों सेम होने चाहिए. सो x प्लस 3 हैज टू बी इक्वल टू 8. दैट गिव्स अस x इक्वल्स टू 5. तो x की वैल्यू 5 हो गई. सो वी कैन रिप्लेस x विद 5. नेक्स्ट, अगर हम यहां पे देखें तो इससे हमें a की वैल्यू 3 मिल रही है. So we can replace this thing by 3. और हमको कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा है, बट वन थिंग विच वी कैन सी दैट इस पूरे का सम 30 के बराबर होना चाहिए. सो अगर हम पूरे का सम करें तो 8 प्लस 6 14 प्लस 6 प्लस y प्लस 7 प्लस b. This should be equal to 30. That gives us b plus y equals to 14 plus 6 20 plus 7 27. So b plus y की वैल्यू हो गई 3. अब हम अगर इसको देखें, यहां पे हम देखें तो एक रिलेशनशिप हमें मिल रही है. अगर a वाली रो को देखें तो 6 प्लस b is equal to, this is in and out. ये है, ये जो यहां से जा रहा था. ये क्या है? ये जो इन लोगों ने किसी और को दिया वही तो हमने यहां पे लिखा है. इसको आउट ही लिख देते हैं. ये वो कार्ड्स हैं जिनको हमने किसी और को दिए. फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे ही करा ना कि B के पास 3 ब्लू कार्ड थे, तो B को ब्लू कार्ड कौन देगा? D देगा. तो ये 3 कहां से आया? D से आया. तो हमने D के पास 3 कर दिए. इसका मतलब ये वो कार्ड हैं जो इन लोगों ने किसी और को दिए, और ये वो कार्ड्स हैं जो ग्रिड में लिखे थे, ये वो कार्ड्स हैं जो इनको मिले. तो अब हम A के पास जो हमारे पास रिलेशन है वो ये है कि 6 प्लस B, दैट इज द कार्ड्स विच A हैज, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस y. इसमें प्लस 1 कर देते हैं, बिकॉज ये जो इन है, आउट जो है वो इन प्लस 1 है. So 6 plus b plus 1, that is 7 plus b is equal to 6 plus y. और यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है b plus y equals to 3. So b equals to 3 minus y. Let's put it in this one. So 7 plus 3 minus y equals to 6 plus y. Solving it further, 10 minus 6, 4 equals to 2y, और y equals to 2. y की वैल्यू 2 हो गई और b की वैल्यू 1 हो गई. अब हमारे पास ये पूरी की पूरी ग्रिड बन गई है. लेट्स नाउ सी द क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ब्लू कार्ड्स डिड A हैव एट द एंड ऑफ द गेम? सो A हैज 3 ब्लू कार्ड्स एट द एंड ऑफ द गेम. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3. Second one is,
ड्यूरिंग द गेम हाउ मेनी टाइम्स डिड बी पास अ कार्ड टू डी। तो हमने ये देखा है कि ये जो 3 4 1 पास अ कार्ड टू डी है, तो डी को कार्ड कहां से मिलेंगे हमें ये देखना है। बी कौन सा कार्ड देगा डी को? बी कार्ड, ब्लू कार्ड डी को देगा बिकॉज दे आर ऑपोजिट फेसिंग। सो डी के पास कितने ब्लू कार्ड हैं? 5 ब्लू कार्ड हैं। दैट मीन्स 5 टाइम्स बी ने कार्ड पास किया होगा डी को। Who has the maximum number of cards at the end of the game? So we can see that D has 9 cards, C has 6 cards, 8 cards and 7 cards. So D has the maximum number of cards at the end of the game. So the answer is D. And the last one, how many blue cards were in the pile at the beginning of the game? तो जितने end of the game में blue cards हैं उतने ही beginning में हैं, तो इनको add कर लेते हैं। 3 plus 3 6 plus 2 8 plus 5 13. That means there were 13 blue cards in the pile at the beginning of the game. So this question was, I won't say it is a medium level question, it's slightly higher than medium level question. There were two very important points at which if you are correct then you would have done it correctly. One was to understand this thing, and the second one, if you were able to understand these two things, then creating these things and equating it was easy. तो अगर किसी ने ये चीज़ पकड़ ली थी स्टार्टिंग में, अगर ये ध्यान से समझ लिया, फिर उसके बाद ये बनाना मुझे नहीं लगता उतना टफ था, एंड देन यहाँ से वैल्यूज़ निकालना उतना टफ नहीं था। थोड़ा सा इन और आउट को अपने दिमाग में रखना था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था टू अंडरस्टैंड। सो दैट कंप्लीट्स दिस सेट गाइज। आई होप यू एंजॉयड द explanation and you enjoyed the set as well. So if you liked it, please like, share and subscribe, and please share it with as many friends as you have. And we want you guys to share it with your juniors, with your seniors, with your batchmates, with any friends of yours जो कोई भी तैयारी कर रहा है, किसी भी aptitude examination की तैयारी कर रहा है, because the more you spread it, the more number of people watch it, and the more powerful or more empowered we feel कि हमारे काम को लोग appreciate कर रहे हैं, and then my team feels more motivated to work and create these videos for you guys. So to get it on a regular basis, to get it on a timely basis, we need this support from all of you. That's it guys. Thank you and happy learning.